Okay. So, as per the syllabus, you have to know about certain terms that we regularly use in database management system. Okay. For example, what is relational database, what is called a attribute, domain, tuple, etc. And different types of keys such as primary key, candidate key, alternate key, foreign key, like this. Okay. So, we are going to discuss that thing. Now, what is called a relation or relational data model? In the data DBMS or database management system, where we can store the data in two-dimensional form that we called a table. Each and every table is known as a relation. Okay. And in that table, we have all these things. We have attribute, we have domain, we have tuple, and all these things. Okay. So we will discuss about these things today. So here I have written the definitions. So all of you open your classwork copy. All of you are having the classwork copy with you. Open the Yes, ma'am. classwork copy. All of you open the classwork copy. You will write the definitions right now in the class. Okay. So write down the first definition, attribute. Write down the first definition, attribute. Let me open a SQL file so that I can show you the things also. No. Oh, okay. So before starting any definition, all of you at first write down this table. All of you at first write down this table. According to this table, I will discuss all these things. Huh? Write down this table at first in your copy. The name of the table will be given as student and write down these records in it. Written? Is the table written? Yes, ma'am. Okay. Now write the definition attribute. Write down the definition attribute. Each column in a table attribute column देके जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखो. मैम Each सब column लिख in a देना। table. Sorry. मैम सब लिख देना जो जो लिखा है वहाँ पर। ना 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 मैं इसके बीच बीच में कुछ लिखाऊंगी. ओ ठीक है। ये एग्जाम्पल भी नहीं लिखना है. ओके मैम। Just write this one.
After writing, please tell me so that I can continue. हुआ है? एक लाइन लिखने में कितना टाइम लग रहा है? तो हो गया। ओके, उसके नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल इन द टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा है ये पहले समझो। एट्रीब्यूट ईच कलम इन अ टेबल। टेबल का कलम क्या है? ये सारा जो कलम है ये सब कलम है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस आर द कलम्स। तो एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ रिलेशन। क्या क्या प्रॉपर्टी हम डाल रहे हैं? एक स्टूडेंट टेबल का क्या क्या प्रॉपर्टी? नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, आईपी, ऑल दीज थिंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टूडेंट। Okay, so these are the attributes. लिखो नीचे, for example, in the table student, in the above table student, for example, in the above table student, name, comma, email, comma, contact, ये जो फील्ड नेम दिख रहा है ये सारा लिखो, comma, English, comma, maths, comma, IP are the attributes. हो गया? Written? यस मैम। Okay. Now in the next line, write down this definition tuple. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इट इज नथिंग बट अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल विच कंटेन्स अ सिंगल रिकॉर्ड। तो एक एक पूरा रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं एक एक टपल, ठीक है? रिटन दिस वन। यस मैम। तो यहाँ पे जाके ये जो ऊपर में स्टूडेंट टेबल लिखे थे, कोई भी एक रिकॉर्ड, मतलब कौशिक का जो लाइन है ये पूरा एक टपल है, ठीक है? साहिल का जो एक लाइन है ये पूरा एक टपल है।
किसी भी एक लाइन को हाईलाइट करो या फिर पास में सेकंड ब्रैकेट दो, दे के एरो दे के लिखो टपल। टेबल के ही ऊपर एक लाइन को हाईलाइट करके एरो दे के टपल लिख दो। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स आर अ सिंगल टपल। हो गया? यस मैम। नाउ एट्रीब्यूट टपल समझ में आ गया है। नाउ वी विल डू डिग्री। राइट डाउन दिस डेफिनेशन। The total number of attributes which in the relation uh, is called the degree within the relation होगा ये, within the relation, within the relation। अब बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ये लिख के बताओगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टूडेंट टेबल। बताओ, डेफिनेशन पढ़ के बताओ स्टूडेंट टेबल का डिग्री क्या होगा। बताओ डिग्री का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन द रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना है बताओ।
What are the attributes of the student table? What I have told? स्टूडेंट टेबल का एट्रीब्यूट क्या क्या है बताओ? श्रेया बताओ. श्रेया, open your microphone. श्रेया, open your microphone. Debargo, Yes, ma'am. have you written the student table in your copy? मैम टेबल नहीं लिखा पर उसके बाद जो लिखा था वो लिख लिया. टेबल ठीक है, मतलब तो छूट गया. एट्रीब्यूट का डेफिनेशन पढ़ो. एट्रीब्यूट का डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल इन द अबव emails student name email contacts English maths are the attribute. इन द above टेबल स्टूडेंट, ईमेल नहीं था, इन द above अच्छा. टेबल स्टूडेंट. ठीक है, तो ओके मैम. स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट ये पहले तो ये है, ये एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट था. एट्रीब्यूट का डेफिनेशन उसके पहले लाइन था. अब उसका पहला लाइन क्या लिखे हो? Each column in table all ना attribute are the. मैम उसके बाद मैम थोड़ा सा छूट गया था मेरा. यहाँ पे तो ओपन किया हुआ है ना डेफिनेशन, छूट कैसे जा रहा है? तुम देख के लिख रहे हो. एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिफाइन अ रिलेशन. ठीक है, तो अब स्टूडेंट टेबल का एट्रीब्यूट क्या क्या लिखे हो बताओ? अभी अभी जो पढ़ा, स्टूडेंट टेबल का एट्रीब्यूट क्या क्या है पढ़ो. स्टूडेंट टेबल का एट्रीब्यूट है नेम ईमेल कॉन्टैक्ट्स इंग्लिश मैथ्स आईपी. हाँ, तो देखो ये सारा एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट टेबल का. नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, आईपी. तो कितना एट्रीब्यूट है स्टूडेंट टेबल का? 6. 6 एट्रीब्यूट है. अब देखो डिग्री का डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ रिलेशन. तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या हुआ स्टूडेंट टेबल का? 6. स्टूडेंट, ठीक है, तो नीचे लिखो देयरफॉर द डिग्री ऑफ स्टूडेंट टेबल इज 6. गॉट इट? The degree of student table is 6. Written? Written? Yes, ma'am. Okay. Now write down the definition of cardinality. Cardinality का definition लिखो. हो गया? लिख लिया कार्डिनलिटी का डेफिनेशन? Yes, ma'am. अब बताओ क्या बोला जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल
ये टेबल में कितना रोज है? हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर? रोज कौन सा वाला है बताओ? 6 rows. नहीं, ये सब कलम्स है। ये जो हाँ, वर्टिकल अच्छा, लाइंस है, दीज आर द कलम्स, रोज आर 5 द हॉरिजॉन्टल 5 rows, लाइंस। 5 rows. हाँ, ये ऊपर वाला लाइन जो है इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ये फील्ड नेम हम नहीं काउंट करेंगे। वी विल एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कितना रोज है बताओ? 4 rows था. 4 rows. So what will be the cardinality of the table? 4. लिखो नीचे। Therefore the cardinality of the table student is 4. Actually इसका कोई मायने नहीं होगा if you are not writing the student table above. ठीक है, so therefore I had told you to write down the student table, otherwise इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, नीचे लिखो therefore the cardinality of student table is 4 बोल के नीचे मैं और एक बार टाइम दे रही हूँ। all of you write down the student table, otherwise बाद में जब पढ़ोगे उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। cardinality of student table is 4 हो गया, ये लाइन हो गया। Yes, ma'am. now write down the student table below, student table लिख कर रखो। हो गया, टेबल लिख लिया। Yes, ma'am. now next thing is there are some keys। keys किसको बोलते हैं? keys are the set of attributes। attribute क्या था याद है? what are the attributes of the table student? और एक बार बताओ, table student का attribute कौन कौन सा है? Name, email, contact, English, math, IP. Okay. So these are the attributes। और keys क्या है? keys are the set of attribute that we will use to identify a particular record uniquely। Okay. मतलब सोचो कि मुझे, मैं बार बार जो बोल रही हूँ कि कौशिक का जो रो है, ये कौशिक कहाँ से आया? कौशिक is the value of the attribute name। So the name field I am using to identify a row uniquely। ठीक है, तो नेम फील्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईमेल फील्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फील्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
मैथ फील्ड से क्या हम सॉरी मार्क्स फील्ड से क्या हम यूनिकली रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सोचो कि मैंने बताया कि मार्क्स ऑफ द मैथ्स फील्ड इज 78, तो उससे क्या हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी रो को? बताओ तो मैथ्स का 78 मार्क्स किसका है? साहिल। ओनली साहिल और किसी का भी है? निखिल का भी है, 2 जन का है। साहिल और निखिल, तो दो रिकॉर्ड इज बीइंग आइडेंटिफाइड, मतलब क्या है, मार्क्स देके हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना? अच्छा, दूसरा और एक सोचो कि अभी तक तो हमने आईटी का कोई रिपीटेड मार्क्स नहीं डाला, इंग्लिश का कोई रिपीटेड मार्क्स नहीं डाला, लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है ना कि नेक्स्ट और एक दो लाइन का ऐड कर ले जहाँ पे हमारा इंग्लिश का और आईटी का रिपीटेड मार्क्स हो। किसी भी और एक स्टूडेंट को 98 इंग्लिश में मिल भी सकता है, 88 इंग्लिश में मिल भी सकता है, आईटी में भी सेम मार्क्स मिल भी सकता है, ये सब मिल सकता है ना? So can we use the any of the marks, English, Maths, IT, will it be suitable so that anyone gives me the marks and I will be able to always able to identify your record by using those marks? Yes or no? समझ में आ रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर तुम्हें बोला जाए कि ईमेल आईडी की @gmail.com, तो तुमको किसी भी एक पर्टिकुलर रो ही मिलेगा। इंग्लिश में 98 अगर तुम बोलोगे, अभी जो रिकॉर्ड है इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक रो ही तुमको मिलेगा, लेकिन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि बाद में और एक दो हम जब स्टूडेंट्स का डिटेल इंसर्ट कर देंगे, then that will not remain unique, right? Then that not remain unique, may not remain unique. Got it? समझ में आया है ये सेंटेंस? ये सब नो यूनिक आइडेंटिफिकेशन समझ में आया है या नहीं आया है? नहीं आया तो बताओ, आई विल रिपीट। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, when I am telling you कि @gmail.com, तब यूनिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये बताओ। यस मैम। पॉसिबल है। When I am telling you marks of maths is equals to 78, तब यूनिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? नो। नहीं है। When I am telling you maths marks of English is equals to 98, तब यूनिक आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है? मैम है शायद। अभी है, राइट? इंग्लिश में 98 मार्क्स सिर्फ कौशिक को ही मिला है, लेकिन ये तो हो ही सकता है ना कि नेक्स्ट जब और दो रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे तब किसी और को भी इंग्लिश में 98 ही मिल जाए। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं है कि कौशिक को ही सिर्फ मिलेगा 98 और किसी को नहीं मिल सकता है कभी भी? मैम पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो हम लोग जब कोई की सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तब थोड़ा दूर का भी सोच के सिलेक्ट करें, ठीक है? तो थोड़ा दूर का मतलब अभी तो नहीं है, रिपीटेशन तो अभी नहीं है, लेकिन बाद में क्या रिपीट हो सकता है ये वैल्यू, ये भी हम थोड़ा सोच लें, ठीक है? लाइक देखो, कौशिक, साहिल, अंशु, निखिल, all these are different names of the student, लेकिन नेम को भी क्या हम एज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज करना हमारे लिए सेफ होगा? दैट विल आइडेंटिफाई योर नेम, आइडेंटिफाई योर रिकॉर्ड सेपरेटली। एक नाम का दो स्टूडेंट क्लास में नहीं रह सकता क्या? एक नाम का दो स्टूडेंट क्लास में हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी क्या यस है? मैम, हो सकता है। हो सकता है। तो नेम भी सेफ नहीं है,
बाद में हो सकता है और एक निखिल आ जाए, और एक कौशिक आ जाए, या साहिल या अंशु आ जाए। ठीक है, तो तब क्या होगा, वी कैन नॉट यूज द नेम फील्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। बट इफ वी सी एट द ईमेल आईडी, दो अगर कौशिक हो जाए तो दोनों का ईमेल आईडी सेम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बता। नो मैम। तभी नहीं हो सकता। दोनों का एक ईमेल आईडी जब क्रिएट हो जाएगा, सेम नेम से दूसरे ईमेल आईडी क्रिएट होगा ही नहीं। So we can safely tell that email can be used as a key for unique identification of a record. Contact number same हो सकता है या नहीं हो सकता? नो मैम। नो मैम। सेम नहीं होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हम सीखेंगे अभी। शायद तुम लोगों का क्लास कितने बजे पे खत्म हो रहा है? लेट मी अंडरस्टैंड वेदर आई विल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ और नॉट। 10:30। 10:30, तो अभी 4 मिनट बाकी है, तो वे अभी ही स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी तुम लोग ये करो, यहाँ तक थोड़ा पढ़ के आओ नेक्स्ट क्लास में कार्डिनल डिजिटल, and from the next class, in the next class we will start learning the keys. Okay, so for now I am stopping the recording.